Assalamu alaikum, my dear students. This is class 12th and we are dealing the chapter semiconductor devices. Dear students, we have gone through in the last video we have gone through what is a transistor and what is NPN transistor, PNP transistor, its action, etc. फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हमने बताई, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. तो ये चीज़ें आपको मालूम हैं. तो टुडे वी आर डीलिंग नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. Transistor characteristics is basically the graph between the voltage and current. Transistor characteristics is the graph between voltage and current. Now you know that in the transistor there is an input section, there is input current, input voltage, and there is an output section. In that we have output current, output voltage. So accordingly, transistor characteristics must be of two types. Number one is input characteristics. Input characteristics, ठीक है, and second is output characteristics. Output characteristics, ठीक. Now what is input characteristics? Input characteristics means it's the graph between input voltage and input current. Output characteristics means the graph between output voltage and output current. Now we will consider it in the circuit diagram. First of all, we will see what is this input characteristics. First point, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहां मैं लिखूंगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है. वी विल कंसिडर एनपीएन ट्रांजिस्टर. एनपीएन ट्रांजिस्टर वी विल यूज इट हियर. क्या आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है कि जो NPN ट्रांजिस्टर है that is frequently used, that's having the wide application because the majority carriers in these are electrons. NPN transistor and electrons are having high mobility as compared to the holes. On that basis we are using NPN transistor. Number one. Number two, we have three configurations. कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होगा कि हमने बताया कि जो ट्रांजिस्टर है दैट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर. अब इसमें इनपुट सेक्शन में आपको दो टर्मिनल्स चाहिए एंड आउटपुट सेक्शंस में भी आपको 2 टर्मिनल्स चाहिए. As it is having only 3 terminals, so one of the terminals is made common to both input section as well as to the output section. So accordingly there are 3 configurations, transistor configurations. Number 1, common emitter. When emitter is common to both input and output section. Common base, when base is common to both input and output section. And common collector configuration accordingly when collector is common to both input and output section. Now we will use here NPN transistor in the common emitter configuration, CE, common emitter configuration. तो यहाँ सर्किट डायग्राम आपको ड्रा करना है. दिस इज द सर्किट डायग्राम. देखिए ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है. हियर वर्टिकल में एक रजिस्टर है, यहाँ बैटरी है. तो ये जो यहाँ रजिस्टर है, तो ये वर्टिकल में और रजिस्टर RC है. यहाँ आउटपुट बैटरी हमने लगा दी है VCC. हियर
output supply, and here it is having the input resistor, say RB, base resistor. Here input supply ऐसे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ये चीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे, यस, ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हैं, जो इनपुट सेक्शन जो है उसमें जो हमने बैटरी लगा दी, दैट इज VBB, इनपुट वोल्टेज जो है, और जो हमने यहां लगा दी बैटरी, दैट इज VCC, आउटपुट सप्लाई. तो बायसिंग हम इस तरह करते हैं कि जो इनपुट सेक्शन है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट सेक्शन एज वेल एज आउटपुट सेक्शन. ठीक है. तो यहाँ N, दिस इज हियर N, P and N. P is connected to the positive terminal of the battery and N is connected to the negative terminal. So it is forward biased. And here this N is connected to the positive terminal and P, this N emitter is connected to the negative terminal. Sorry. N is connected to the positive. This is NPN. ठीक है. तो ये reverse bias है. Collector is reverse biased, and here we say it is forward biased input section. ठीक है. एक चीज ये. दूसरी बात यह है कि जो यहाँ RB है, बेस रेजिस्टर, इसके along वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ होगा. देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप हियर. ठीक है. तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना होगा, जो उसमें करंट फ्लो होगी. देखिए आप यहां देख रहे हैं, दिस इज IE. IE इज द इमिटर करंट. वो यहां पहुंच के इसके दो हिस्से हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉस, करंट लॉ, जंक्शन रूल जिसको कहते हैं. तो एक हिस्सा यहां चला जाएगा, हियर. सो वी विल हैव IB हियर, और जो दूसरा हिस्सा है दैट विल बी हियर. सो दैट इज हियर IC. ठीक है. तो टोटल में IE इक्वल टू IB प्लस IC. ठीक है. दूसरी बात यह कि जो मैंने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर, यानी जो हमने VBB वोल्टेज दिया वो सारा इसमें नहीं चला जाएगा. A part of it will be dropped as the voltage drop across RB, and that voltage drop will be IB into RB. So इस तरह जो VBB होगा that will be या VBE जो होगा बेस इमिटर के along, ऐसे जो हम देख सकते हैं, या जो हम ऐसे वोल्टमीटर यहां लगाते हैं, तो दैट मेजर्स VBE. तो यहां मैं लिखूंगा VBE. ठीक है. इट विल बी VBB माइनस IB RB. ठीक है. तो इसी तरह जो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस RC, कलेक्टर रेजिस्टर और लोड रेजिस्टर और या आउटपुट रेजिस्टर, तो वो भी हम यहां वोल्टमीटर एक लगा के यहां VCE देखते हैं. यानी जो एक्चुअल में इसमें इनपुट है दैट इज नॉट VCC, दैट इज VCC माइनस ICRC एंड वी कॉल इट VCE. ठीक है. ये चीजें यहां करंट मेजर करने के लिए हम यहां इसको माइक्रो एमीटर लगाते हैं ऐसे, और वोल्टेज यहां भी हम एमीटर लगाते हैं, और यहां वोल्टमीटर. तो इस तरह ये सर्किट डायग्राम आपको मिल रही है. तो अगेन आई विल रिपीट, सर्किट डायग्राम में NPN ट्रांजिस्टर है. N जो है उसका एरो बाहर साइड है, इमिटर के अलॉन्ग एरो लगता है, जिसका ये मतलब है कि करंट फ्लोज आउटसाइड. दूसरी बात यह है कि यहाँ इसके ऐसे सीरीज में यहाँ RB लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टर, और यहाँ एक वर्टिकल रेजिस्टर लगाया जाता है हमेशा, दैट इज RC. ठीक है. इनपुट सेक्शन जो है उसको इनपुट बैटरी देते हैं VBB, और आउटपुट को आउटपुट सप्लाई देते हैं, दैट इज VCC.
लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ नेट इनपुट वोल्टेज होगा VBE और यहाँ आउटपुट वोल्टेज होगा VCE और VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC एंड VBE इज इक्वल टू VBB माइनस IBRB। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि इनपुट करंट क्या है। व्हाट इज इनपुट करंट? दैट इज IB एंड व्हाट इज इनपुट वोल्टेज? दैट इज VBE। ठीक है, VBE। ठीक, आउटपुट करंट क्या है? दैट इज IC। इनपुट का आउटपुट वोल्टेज करंट क्या है? वोल्टेज क्या है? दैट इज VCE। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। यानी मैं यहां डिफाइन करूंगा, आई विल डिफाइन इट लाइक दिस। सर्किट डायग्राम आपने ड्रा किया होगा। नाउ व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट voltage, that means VBE, and input current, that means IB, at constant output voltage, that is VCE। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह हम ड्रा करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ग्राफिकली अगर मैं देखूंगा, here it is VBE and here it is IB and we keep VCE fix। यानी एक पर्टिकुलर कर्व के लिए हम VCE का वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। से 5 वोल्ट के लिए VBE वर्सेस IB ड्रा करते हैं। यानी ग्राफिकली दिए हुए टेबुलर फॉर्म में हम दिखाएंगे। VBE IB, VBE विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वोल्टमीटर जो वहां लगाया है, अभी हमने सर्किट में दिखाया। तो उस अकॉर्डिंगली IB का वैल्यू नोट किया जाएगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VBE वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। वी विल नोट इट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VCE को फिक्स करते हैं। So we see the graph like this। ऐसे ग्राफ हमको मिलता है, ऐसे ग्राफ हमको मिलता है। Say this is VCE, say it is 5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह हम 5 वोल्ट के बदले 10 वोल्ट अब इसको फिक्स करते हैं। तो अगेन वी आर चेंजिंग VB, वी आर गेटिंग IB। द ग्राफ विल बी somehow like this। ऐसे डिफरेंट कर्व्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ this VCE 10 volt, this is VCE is 15 volt, etc। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, you see the graph, it is just matching the forward characteristics of the diode। जो हमने डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ड्रा किए थे, तो वो इसके साथ जो है मैच खाता है। यानी ये this graph is resembling that graph। This graph, this is input characteristics, it is exactly the same as the forward characteristics of PN junction diode। So it means that this voltage, यहां तक जो आप देख रहे हैं वोल्टेज, इस वोल्टेज तक करंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और इसको नाम दिया था वहां हमने नी वोल्टेज, हियर आल्सो कॉल्ड नी वोल्टेज। तो यहां तक ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है। ठीक है, नी वोल्टेज है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। वंस दिस नी वोल्टेज, वंस द बैरियर वोल्टेज, जो बैरियर वोल्टेज जो है जो क्रॉस हो जाता है, वंस दिस इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द बैरियर वोल्टेज, देन द graph is increasing sharply। That means there is the current is increasing sharply। We are getting the
लीनियर रिलेशनशिप वीबी एंड आईबी। ठीक है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें जो स्लोप होगा इस कर्व का स्लोप, दैट विल गिव अस द रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा वीबीई divided by delta IB at constant VCE, at constant VCE। ये इनपुट रेजिस्टेंस होगी, इसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं क्योंकि इसको डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट स्लोप है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है नहीं, इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, इट इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक डिवाइस ट्रांजिस्टर, सो दिस इज डायनामिक रेजिस्टेंस, चेंजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह हमने ड्रा किया है ग्राफ किसका, ट्रांजिस्टर का एज एन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द ग्राफ, पहले नोट कर लीजिए आप, इट इज द ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज that is VCE and output current ब्रैकेट में लिखो IC एट कांस्टेंट। इस बार हम इनपुट करंट को कांस्टेंट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, एट कांस्टेंट इनपुट करंट ब्रैकेट में लिखो IB। ठीक है, यानी IB को हम फिक्स कर रहे हैं, तो हम VCE को चेंज कर रहे हैं, IC को नोट कर रहे हैं। Drawing the graph between VCE and IC, the graph at a particular value of IB, we are getting the curve that is called the output characteristics। जैसा कि हम यहां दिखा रहे हैं, this is VCE in volts and this is IC in amperes। तो यहां हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम IB को फिक्स कर रहे हैं, से इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू 0 है तो IC विल बी 0 आल्सो, बिकॉज जो हमारे पास बीटा होता है, बीटा आपको याद होगा, करंट गेन जिसको हम कहते हैं, दैट इज करंट गेन। बीटा इज आउटपुट करंट IC डिवाइडेड बाय इनपुट करंट IB। सो IC विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय IB मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। जब IB 0 होगा तो सीधी सी बात है IC विल बी 0, so there will be no output current, but you see in the graph there is a small value of the current, that is leakage current। थोड़ा सा वैल्यू हमको मिल रहा है करंट का, although that is very small, वो हम ऐसे दिखा रहे हैं। so it is the curve at IB equal to 0। ठीक है, तो ये IB equal to 0, that is the current, this is the curve at IB equal to 0। It is very close to VCE because we are getting a very very small value of IC, that is leakage current। ठीक है, अब उसके बाद हम IB का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्राफ के लिए हम इसको फिक्स कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो हम IB से 0 से इट इज 5 माइक्रो एम्पियर इसको बढ़ा रहे हैं। तो अगेन वी ड्रा द ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC, VCE और IC के दरमियान हम ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग द ग्राफ अगेन लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, तो से दिस इज IB इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह हम ग्राफ को और ड्रा करें फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस, से IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर अगेन एटसेट्रा। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इट टेल्स अस मेनी थिंग्स। नंबर 1, जो ये रीजन आपको मिल रहा है,
ये रीजन जो मैंने शेडेड कर दिया, यानी वो रीजन है जिसमें IB इक्वल टू 0। इट इज द ग्राफ, दिस इज द रीजन वेयर IB इक्वल टू 0, इसके लोअर में IB 0 है। और जो इसका VCE वर्सेस IC ग्राफ है, जो हमारे पास ये रीजन हमको मिला, इट इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। इट इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, याद रखो, कट ऑफ रीजन। द रीजन और द ग्राफ बिटवीन VC एंड IC एट IB इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हम VCE को बढ़ा रहे हैं, पहले करंट इंक्रीज हो रही है, फिर सैचुरेट हो रही है, तो ये जो यहां तक जो वैल्यू है, ये हमको हेल्प कर रहा है सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंचने में। यहां ये देखो, हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन। तो जो डॉटेड लाइन से पहले पहले ग्राफ है, ऐसे ये वाला ग्राफ, जिसको मैंने अगेन क्या कहते हैं, इसको शेडेड बना दिया ऐसे। दिस रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। इट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, प्लीज नोट इट, सैचुरेशन रीजन। ये जो सैचुरेशन रीजन है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम VCE को बढ़ा रहे हैं, करंट भी इंक्रीज हो रही है। ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ठीक है। तो ये हमको सैचुरेट, करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक लेने के लिए हमको हेल्प कर रहा है, VCE वर्सेस IC वैल्यू। तो इसलिए इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं, इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और जो बाकी यहां रीजन हमारे पास आ गया, दैट इज एक्टिव रीजन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन। यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, कभी कट ऑफ रीजन में होता है, कभी एक्टिव रीजन में, कभी सैचुरेशन रीजन में। या हमारा जो ट्रांजिस्टर है, इसके 3 मोड्स हैं, 3 मोड से काम करने के। एक कट ऑफ मोड में होता है, दूसरा एक्टिव मोड में, और तीसरा सैचुरेशन मोड में। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट, दैट अ ट्रांजिस्टर कैन वर्क इन दीज रीजन्स इन अ डिफरेंट वे। यानी कि अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा या कट ऑफ मोड में होगा, तब इसके जो इनपुट सेक्शन जो है, इनपुट सेक्शन दैट विल बी, यानी जो इसका बेस इमिटर सेक्शन है, दैट विल बी रिवर्स बायस्ड। और जो इसका कलेक्टर इमिटर सेक्शन है, यानी जो आउटपुट सेक्शन है, दैट विल बी आल्सो रिवर्स बायस्ड, बोथ रिवर्स बायस्ड। ठीक है। यानी ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। तो जो यहां हमको मिलता है सैचुरेशन रीजन, उसमें बेस इमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन कलेक्टर इमिटर जंक्शन जो है वो भी फॉरवर्ड बायस में होता है, दोनों फॉरवर्ड बायस। इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन बोथ आर इन द फॉरवर्ड बायस। जो एक्टिव रीजन है, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है, तब इसका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा, देन इट इज, और जब ये ऑफ मोड, कट ऑफ मोड में होगा, देन इट इज कॉल्ड ऑफ कंडीशन। एंड व्हेन इट इज इन द सैचुरेशन मोड, इट इज कॉल्ड ऑन कंडीशन। और ये जो ऑन ऑफ कंडीशन है, ये इसका फंक्शन है एज अ स्विच, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। यानी व्हेन ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ स्विच, it is in the cutoff region as well as in the saturation region. When it is in the cutoff region or cutoff mode, it is at the it is in the off condition, and when it is in the saturation region, it is in the off condition. Sorry, on condition. ये off condition है, ये on condition है। ये on off condition जो है, it is transistor as a switch, solid state switch इसको बोलते हैं। ठीक है। और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करता है, एक्टिव रीजन में होता है, देन इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, देन इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। तो ये चीजें हमको आगे देखना है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। वी विल डील इट सेपरेटली। तो पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। अब यहां भी हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं।
we are finding output resistance, that is RO, and that will be equal to, that is also dynamic resistance because its value is changing here, that is VC delta VCE divided by delta IC at constant IB. ठीक है, डेल्टा VCE divided by IC delta IC at constant IB, this is output resistance. ठीक है, तो ये चीज हमने क्लियर आपको कर दिया कि ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. थैंक यू वेरी मच.